میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَعَنَّابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ تمام خواتین و حضرات کو علم ہے کہ پاکستان کے جو حالات آج کل جس نہج پہ ہیں، اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی پروگرام ایک شکاگو میں ڈیو تھا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پروگرام کو جس طریقے سے ہم نے ترتیب دیا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ پہلے تمام معزز مہمانان گرامی کی تقاریر ہوں گی، اپنے خیالات کو وہ اظہار کریں گے۔ اس کے بعد سوال جواب کا ہم نے سیشن رکھا ہے۔ سوال جواب کا جو فارمیٹ ہوگا وہ کچھ اس طرح ہے کہ میں درخواست کروں گا، کیونکہ حاضری ہماری آج کم ہے موسم کی وجہ سے، اور شکاگو شہر میں آپ کو پتہ ہے کئی اور بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں، جس میں ایک میلہ بھی ہے بولنگ بروک کا، اور 2-3 اور شکاگو سٹی میں ایونٹس ہیں۔ میں شکر گزار ہوں تمام حضرات کا، خواتین کا جو یہاں تشریف لائے، ان تمام ناگزیر وجوہات کے باوجود۔ تو فارمیٹ سوال جواب کا یہ ہوگا کہ برائے مہربانی اپنے سوالات کو مختصر رکھیے، پہلے سے سوچ لیجئے کہ آپ کو کیا سوال کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسی وقت اس کو کمپوز کریں اپنے خیالات کو، اور اپنا لمبا چوڑا میں تقریباً تمام ہی حضرات کو جانتا ہوں، میں آپ کا نام بتاؤں گا، لیکن اپنے تعارف میں برائے مہربانی زیادہ وقت مت لگائیے گا، ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور اس وقت ہمارے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مہمانان گرامی کو موقع دیں اور ان کی گفتگو سنیں، اور مختصر سوالات کے طویل جوابات انشاءاللہ ان سے لیں۔ ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کے مایہ ناز دانشور، صحافی، تجزیہ نگار، سیاسی تجزیہ نگار حسن نثار صاحب اسکائپ پہ موجود ہیں۔ آئی ہوپ کہ وہ انہیں سب سمجھ میں آ رہا ہے، سن رہے ہیں وہ یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اور ان کو آئی ڈونٹ نو کہ ان کو اسٹیج سے نظر آ رہا ہے یا لوگ بھی نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ بہرحال ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ حسن نثار صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی، اور ہماری خوش قسمتی ہے اسٹل کہ وہ یہاں موجود ہیں اسکائپ پہ ہمارے ساتھ۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ گیو ہم اے بگ ہینڈ فار حسن نثار صاحب۔ حسن نثار صاحب، اگر آپ اپنی گردن ہلا کے صرف یہ کہہ دیں کہ آپ کو سب سنائی دے رہا ہے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ ایک طرفہ کمیونیکیشن نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ یہ 1.5 طرفہ ہے۔ 1.5 طرفہ ہے۔ I was expecting this from you. تو اب آپ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آواز کم آ رہی ہے۔ اچھا تو اچھا جناب
सुहेल वड़ाई साहब, जिनका नाम पाकिस्तानियों के लिए कम से कम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इनका एक मखसूस अंदाज़ है और वो अंदाज़ इतना मशहूर है पाकिस्तानियों में कि बाज़ दफ़ा जब हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और वो उस अंदाज़ में बात नहीं करते तो हैरत होती है कि ये वही सुहेल वड़ाई साहब हैं जो टीवी पे आते हैं या उनके कोई जुड़वा भाई हैं। मैं आपकी तालियों की बाज़गश में सुहेल वड़ाई साहब से मेरी मुलाकात अभी एक हफ़्ते पहले पहली दफ़ा हुई है और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना इम्प्रेस हुआ हूँ इनकी नॉलेज से, इनके बिहेवियर से, इनके अखलाक से। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ऐसे लोग भी अता किए हैं इस मुल्क में जहाँ एक अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी का हाल है। टीवी पे आप देखते हैं किस तरीके से मीडिया में लोग लड़ते हैं एक दूसरे से। ये वो उन चंद लोगों में से एक शख्सियत हैं जो बिल्कुल लो प्रोफाइल, दूसरे को भी इज़्ज़त देते हैं और उसी से इनकी भी इज़्ज़त होती है। प्लीज़ गिव हिम अ बिग हैंड, सुहेल वड़ाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सच्ची बात तो यह है कि यहाँ दानिश्वरों की महफिल है और सुनने वाले भी वो हैं जो हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। तो मैं तो सिर्फ़ एक तालिब इल्म हूँ और मुझे आप यूँ समझें कि मेरी राय शायद आप सबकी राय से मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि सिर्फ़ मुझे इस राय को सुनने का जो हक़ है वो दे दें और आप अगर पाकिस्तानी सिर्फ दूसरे की राय सुनना शुरू कर दें जो शायद आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन आप उसे सुने ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि आपकी राय दुरुस्त हो सकता है मेरी राय दुरुस्त हो, लेकिन अल्टीमेटली जिस मुल्क के अंदर दो आरा नहीं होती, जिस मुल्क के अंदर दो नुक्ता है नज़र नहीं होते, वहाँ पे फाशिज़म होता है, वहाँ पे सिर्फ आमरीत होती है, वहाँ पर सिर्फ फंडामेंटलिज्म होता है। और जब आप दो आरा जो हैं उनमें से एक चुनना शुरू कर देते हैं, चाहे जो भी चुने, अल्टीमेटली मुल्क के हालात के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ दो आरा को बर्दाश्त करें। और अब मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं चूँकि एक सहाफ़ी हूँ, रिपोर्टर हूँ, रहा हूँ, अब भी अपने आप को रिपोर्टर समझता हूँ, जिस चीज़ के बारे में आप सब जानना चाहते हैं मैं उससे अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। है मुश्किल, लेकिन मैं उस मुश्किल को हल करने की कोशिश करता हूँ। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या हुकूमत बदल जाएगी, क्या इमरान खान का धरना कामयाब हो जाएगा, क्या केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, क्या मार्शल लॉ आ जाएगा। ये सब वो सवालात हैं जो हम हर रोज़ एक दूसरे से करते हैं और हम भी चाहे यहाँ पे छुट्टियाँ ही मना रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन हर रोज़ आपस में ये सवाल करते हैं। और इस सवाल का मैंने हल ये ढूंढा है कि इसको बड़े ही अनबाइस्ड होके, बिल्कुल गैर जानिबदार होके, इसमें यह ना समझिए कि वाक़यात के किस तरफ मैं हूँ और किस तरफ आप हैं, सिर्फ हम ये जायज़ा लें कि क्या वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये रखा हुआ है आपस में सब दोस्तों ने कि भाई हर रोज़ परसेंटेज निकालें कि आज कौन सी परसेंटेज ज़्यादा है, किसका चार्ज ज़्यादा है। जिस दिन मैं पाकिस्तान से आया और वहाँ ज़ाहिर है मैं सुन के आया, मुख्तलिफ़ लोगों की आरा सुन के आया और वेल इन्फॉर्म्ड लोगों से मिल के आया, तो उस दिन मेरा ये ख्याल था कि 80% चांस हुकूमत जाने का है और 20% चांस हुकूमत रहने का है। और फिर हम हर रोज़ परसेंटेज जो है वो कभी कम कर देते, कभी जिस तरह के हालात हो रहे हैं उसके मुताबिक, तो कभी ये 70-30 हो जाता है, कभी जो है वो इसमें तब्दीली आ जाती है। लेकिन आज मैं समझता हूँ ये 60-40 है। 60% अभी भी हुकूमत के ऊपर ख़तरात जो है वो मंडला रहे हैं और 40% जो है वो तब्दीली का चांस अभी तक मौजूद है और ये हर रोज़ तब्दील होगा 31 अगस्त तक, मेरी ये राय है। तो ये तो वो थी एक तज्ज़िया। अब मैं अपनी तरफ आता हूँ।
सच्ची बात यह है कि मैंने हमेशा जब भी पाकिस्तान के बारे में बात की है कई सालों से, मैंने उसके रोशन पहलुओं की तरफ ज़्यादा तवज्जो की है और मैंने उम्मीद की बात की है। मैंने पाकिस्तान के अंदर अगरचे दहशतगर्दी थी, उम्मीद के दिए डगमगा रहे थे, लेकिन मैं कहता था कि अगर उम्मीद नहीं रखेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो इस हवाले से जब बात करनी शुरू की, ये पहला मौका है कई सालों के बाद कि मुझे यूँ लगता है कि मेरे अंदर भी कन्फ्यूजन आया है कि क्या उम्मीद कायम है, क्या उम्मीद अभी भी मौजूद है। लेकिन फिर मैं अपनी उसी ऑप्टिमिज़म को बरूए कार लाते हुए, उसी अपनी उम्मीद को बरूए कार लाते हुए ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम में बहुत से पॉजिटिव पहलू हैं अब भी। अगरचे सबसे पहली बात तो ये तब्दीली है क्या, जो पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले तब्दीली की बात शुरू हुई और वो तब्दीली की बात हर जगह मौजूद है। मैं इस तब्दीली को इंसानी नफ्सियात में मायूसी से जोड़ता हूँ। पाकिस्तान में आप पाकिस्तान के आबाद बाहर लोगों से पूछ लें या पाकिस्तान में मौजूद लोगों से पूछें, उससे सवाल करें कि क्या आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात से मुतमिन हैं, वो कहेगा नहीं। अब इसमें बज़ाहिर बड़ी मायूसी है और हम हर बंदा ये कहता है कि पाकिस्तान में बड़ी मायूसी चल रही है, लेकिन मैं इसी मायूसी में उम्मीद देखता हूँ कि लोगों ने पाकिस्तान में पहली बार, पाकिस्तान तो ऐसा ही था शुरू से, पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे थे शुरू से ही, पाकिस्तान के लोगों ने पहली बार ये सोचना शुरू कर दिया, इस बात को सोच के रह गए, उन्हें समझ आ गई कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। ये वो सच है जो उन्हें पहली बार समझ आया है। और इस मायूसी के अंदर और इस जो तब्दीली की बात की जा रही है कि कोई भी पाकिस्तान के मौजूदा हालात से मुतमिन नहीं, वो हालात को बदलना चाहता है। हाँ, उसके बदलने का अंदाज़ क्या है इस पे इख्तलाफ है, लेकिन कोई एक भी, चाहे वो हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, इमरान खान के साथ हो, पीपल्स पार्टी में हो, कोई भी हो, जमात इस्लामी में हो, सब कहते हैं हालात बदलने चाहिए। और कहते हैं ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। तो अब वो वक्त आ गया है कि जब लोग हालत बदलना चाहते हैं पाकिस्तान की। क्या ये मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ या इसके पीछे कोई एविडेंस भी है? इसके पीछे एविडेंस भी है। एविडेंस ये है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास प्रपोर्शन वाइज इंडिया से भी ज़्यादा हो चुकी है। और जब भी दुनिया में किसी मुल्क में मिडिल क्लास एक ख़ास प्रपोर्शन में पहुंचती है तो वो मिडिल क्लास पूरे मुल्क के हालात बदलने की कोशिश करती है ताकि उसकी इकनॉमिक वायबिलिटी और उसकी फ़िज़िकल सर्वाइवल का माहौल पैदा हो। और पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ दैट। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में बरतानिया ने या दूसरे मुल्कों ने, आज अमेरिका ने जो अरूज हासिल किया, क्या उसके पीछे इल्म और टेक्नोलॉजी के अलावा कोई वजह थी? तो पाकिस्तान में इस वक्त जो बच्चे 50% या 45% मुख्तलिफ फिगर्स मौजूद हैं, वो जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। पहले अगर 16 यूनिवर्सिटियां थीं तो अब 100 यूनिवर्सिटी बन चुकी है। प्राइवेट जो ग्रामर स्कूल्स हैं और प्राइवेट इंग्लिश स्कूल्स हैं, अगरचे हमारे पीले स्कूलों का या सरकारी स्कूलों का हाल बहुत पतला है, लेकिन हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके हालात बहुत अच्छे हैं, फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और इसी तरह जो यूथ है, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, तुर्की के अंदर किस तरह से तब्दीली आई कि एजुकेटेड मिडिल क्लास ने बिल आकर मुआशरे की एलीट की जगह ले ली। और जब मिडिल क्लास जगह लेती है तो मुआशरे के हालात बदलते हैं। उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि ग्राउंड तैयार है, वो कब मौका आएगा ये देखने की बात है। अब आ गया मैं एक और बात, आप चूँकि सब एक्सपर्ट बैठे हैं, तारकीन वतन हैं,
تو میں آپ سے بھی کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں بطور ایک طالب علم کے پاکستان سے آنے والے، کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، ہم سے بہتر حالات میں ہیں، اور میں آپ کو مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو اور قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال بیرون ملک تعلیم نہ پاتے تو شاید نہ انڈیا کو آزادی ملتی، نہ پاکستان آزاد ہوتا۔ انہیں تعلیم نے یہ شعور دیا کانفلکٹ ریزولوشن کیسے کرتے ہیں، کیسے معاملات کو سدھارتے ہیں، کیسے آپ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑے بغیر اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ یہاں رہنے والے آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمیں کانفلکٹ ریزولوشن نہیں آتا، ہم گھروں میں لڑتے ہیں، بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں، بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں۔ یہاں کی سوسائٹی میں کانفلکٹ ریزولوشن ہمارے سے بہتر ہے۔ آپ ہمیں قمیضیں، ٹائیاں، بوٹ نہ بھیجا کریں، ہمیں جو شعور آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کا یہاں حاصل کیا ہے وہ تھوڑا سا ٹرانسفر کر دیں، اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ اور آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سوالوں کے جواب میں اور بھی لمبی بات ہوگی۔ آخر میں حسن نثار صاحب موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ ان تک پہنچیں تاکہ ان کے خیالات ہم بھی سنیں۔ ہمیں بچھڑے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں جمہوری ملک میں بیٹھے ہیں، یہاں آپ یہاں کی جمہوریت کے ثمرات سے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور دنیا میں پہلے اگر آپ 100 سال پہلے چلے جائیں تو دنیا میں صرف درجن سے بھی کم جمہوری ممالک تھے، اب 100 سے زیادہ جمہوری ممالک ہیں۔ ٹرینڈ جو ہے دنیا بھر میں وہ جمہوریت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں آپ یہ ایڈوائس نہ دیں کہ ہم جمہوریت سے ہٹ جائیں، ہمیں یہ ایڈوائس بالکل نہ دیں کہ ہم آئین کو چھوڑ دیں۔ یہ بڑی مشکلوں سے تیار ہوتے ہیں، یہ بڑی مشکلوں سے جو ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ صرف سیاسی مخالفت میں یہ نہ کریں کہ سارا کچھ جو پاکستانی قوم نے حاصل کیا ہے اسے ایک ہی دھچکے میں ہم سب اسے کھو دیں۔ اس کی بجائے ایسے راستے تلاش کریں جمہوری ہوں، آئینی ہوں، اور اس میں سب سیاسی جماعتیں بھی پھلے پھولیں، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ ان کے مخالف ہوں، سب کو حق ہے، سب جمہوریت کی ہی پیداوار ہیں۔ اگر عمران خان، اگر جمہوریت نہ ہو اور اگر سیاسی جماعتیں نہ ہوں تو پھر تو عمران خان صرف کرکٹ کے کپتان ہوتے ہیں۔ وہ جمہوریت اور سیاست کی وجہ سے ہی آج ہیرو ہیں ہمارے۔ اور اگر ہم جمہوریت کی ہی صف ہم نے لپیٹ دی اور اگر ہم نے سیاست کی صف ہی لپیٹ دی تو پھر ایک نئی کہانی شروع ہوگی جس کا انجام پہلے ہم 10 سال کے وقفے میں دیکھ چکے ہیں، اور پھر پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوگا اور کدھر جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اب دعوت دیتا ہوں، ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے قابل اعتراض ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ایک انتہائی قابل شخصیت ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو اپنے پولائٹ بیہیویئر سے، جو اپنی گفتگو سے، جو اپنے آرگیومنٹ سے لوگوں کے دل مو لیتے ہیں۔ آپ ان سے لاکھ اختلاف رکھیں، لیکن جب آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے گفتگو کرنے کے لیے تو اس کے بعد میں یقینی طور پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کنونس، ایسا نظر آیا کہ آپ کنونس نہیں ہیں تو یہ آپ کی ضد ہوگی، آپ اندر سے کنونس ہو چکے ہوں گے ان سے گفتگو کرنے کے بعد، لیکن انا کی وجہ سے آپ مجبور ہوں گے کہ آپ پھر بھی اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے رہیں۔ میں آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں اپنے معزز مہمان، فارمر ایمبیسڈر آف پاکستان، مشہور دانشور، تجزیہ نگار اور صحافی حسین حقانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इस तारुफ़ का। मैं तकरीबन हर महीने 2-4 जगह तकरीर ज़रूर करता हूँ और पिछले दिनों पाकिस्तानी डॉक्टरों के कन्वेंशन में भी ये कह चुका हूँ कि मैंने कोई 45 ममालिक में तकारीर की हूँ। कहीं तारुफ़ कराने वाले को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जी जो अब मुकर्रर तकरीर करने आ रहा है वो बड़ा मुतनाज़े है, ज़रा बराए करम उसकी बात सुन लें। उसका सबब ये है कि ये बात एक जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं गिवन है कि जिस आदमी की राय होगी उसकी राय से हर आदमी इत्तेफाक नहीं करेगा और हर आदमी को अपनी राय के इजहार का हक है और हर आदमी की बात सुननी लोगों के लिए जब वो आए हैं किसी की बात सुनने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन ये तारुफ़ भी बड़ा ज़रूरी है। इसका सबब ये है कि मैं आप लोगों के दरमियान कई दफ़ा आ चुका हूँ। पहले एक प्रोफेसर के तौर पे हाज़िर हुआ, फिर सफ़ीर के तौर पे भी बाज़ औक़ात आया, फिर दोबारा प्रोफेसर हूँ, फिर प्रोफेसर के तौर पे हाज़िर हो रहा हूँ। लेकिन ये बात हमारे ही दरमियान एक मसला बनती है कि जिस आदमी की राय से हमें इख्तलाफ होता है हम कहते हैं ये बोल क्यों रहा है, इसको बोलने मत दो। और हमारे बड़े बड़े लीडर भी ये बातें करते हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं हम ज़बान खींच लेंगे, हम इसको बात नहीं करने देंगे, ये बात करने वाला गुस्ताख है, इसको रोक दिया जाएगा। और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी नाचीज़ राय में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है। जैसा कि सुहेल वड़ाइच साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की सलाहियत कम है। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो बात की बात है, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्टैंडिंग की भी सलाहियत कम है। हम बाज़ औक़ात ये समझ नहीं पाते कि 2 राय हों, 4 राय हों, 6 राय हों, ज़्यादा आरा होने से कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है जब लोग गौर करना, सोचना बंद कर देते हैं। सोचने वालों ही की राय होती है ना, जो सोचते ही नहीं है उनकी तो कोई राय नहीं होगी, वो तो हाथ उठाएंगे सिर्फ किसी की तारीफ में, किसी के साथ। कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी गुफ्तगू वो होती है जो ख्यालात के बारे में हो। स्मार्टेस्ट पीपल टॉक अबाउट आइडियाज़। उससे जो कमतर गुफ्तगू होती है वो वाक़यात के बारे में होती है। आजकल क्या हो रहा है, परसों क्या हुआ था, पिछले हफ्ते क्या हुआ। सो ये होती है गुफ्तगू इवेंट्स के बारे में। लेसर माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड कहते हैं द वीकेस्ट माइंड्स डिस्कस पर्सनैलिटीज़। जो सबसे